السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 24۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ اور جنہوں نے مجھ سے اس ناول کی ریکویسٹ کی تھی، میں چاہتی ہوں ایٹ لیسٹ جو بندہ خود ریکویسٹ کرتا ہے وہ تو ڈیلی لائک اور کمنٹ ضرور کیا کرے ہر ایپیسوڈ پر، تاکہ مجھے بھی خوشی ملے کہ جن کی ریکویسٹ پر میں ناول پڑھ رہی ہوں ایٹ لیسٹ وہ تو انٹرسٹ لے کر سن رہا ہے، وہ تو لائک کرتا ہے، وہ تو کمنٹ کرتا ہے۔ کئی لوگ صرف ناول سنتے ہیں، لائک تک نہیں کرتے۔ یار لائک کا ایک بٹن دبانے میں آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے؟ انٹریکشن جیسے بڑھتا ہے تو اس میں ہمارے ویوز بڑھتے ہیں، ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ انٹریکشن ہی نہیں دیتے۔ اتنی محنت سے میں ناولس ریکارڈ کرتی ہوں، اس کو پھر میں ایڈٹ کرتی ہوں، پھر میں اس سے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتی ہوں، آپ کی ریکویسٹڈ ناول پڑھتی ہوں، اس کے باوجود اگر لائک کمنٹس نہ ہو تو پھر کیا ہی مزہ۔ تو پلیز جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کسی ناول کے لیے تو اسے لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ تو چلے فی الحال ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ ہیر اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی، صرف وہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ 3 آدمی اور جو اس کے پرسنل گارڈز تھے، جو ہر قسم کی سچویشن میں اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہیر بنا چہرے سے ہیلمٹ اتارے ایک بڑے سے کارخانے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ بائک کو کچھ فاصلے پر پارک کر کے آئی تھی، اب وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے بڑے سے کارخانے سے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی، اس دروازے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ 2 پل ٹھہر کر وہ دروازے کے بائیں جانب جاتی ہے اور اپنا ہاتھ ایک شیشے کے چھوٹے سے باکس میں ڈال کر وہ اپنی پہچان دکھائے اپنے لیے دروازہ کھلواتی ہے۔ ہیر کی اسکیننگ پر دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی ہیر اندر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 3 آدمی بھی اندر جاتے ہیں۔ ان کے قدم رکھتے ہی دروازہ پیچھے سے بند ہو جاتا ہے۔ ہیر اندر پہنچ کر اپنا ہیلمٹ اتار کر اپنے ہاتھ میں رکھے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں پر کارخانے کی لائٹس آن ہونے لگتی ہے۔ نک! ہیر مزید آگے آ کر رک جاتی ہے اور بلند آواز میں اسے آواز لگاتی ہے۔ ہیر کی آواز پر نک کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آ گئی تم؟ نک طنزیہ لہجے میں کہتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم شاید اب صرف ایک بیوی بن کر رہ گئی ہو، تمہاری دنیا تمہارے شوہر تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ نک ابھی بھی طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ اور شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ میں نے کیا کہا تھا۔ نک ہیلمٹ زور سے نک کی طرف ہوا میں اڑاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور اپنے ایک آدمی سے جو پہلے ہی نک کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے ہاتھ سے گن لے کر وہ اپنے آدمیوں کے پیچھے نڈھال حالت میں کرسی پر خون سے تر ہولیے میں سر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف بڑھتی ہے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ نک ہیر سے پوچھتا ہے۔ یہی میری جان، میرے شوہر کے بارے میں کچھ مت بولو، اس کا نام صرف لینے کا حق میرا ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ ہیر گن کا ٹریگر چڑھاتے ہوئے کہتی ہے، اس نے کچھ بتایا؟ ہیر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، نہیں۔ نک گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، اب بتائے گا۔ ہیر کہتے ہی بنا وقت گنوائے اس کے کندھے پر گولی چلا دیتی ہے۔ گولی چلتے ہی نک جھٹ سے حیرانگی سے ہیر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ آدمی بھی درد میں کراتے ہوئے چلانے لگتا ہے، Is anyone here to help you out؟ ہیر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تھوڑا جھک کر پوچھتی ہے، I'm asking you something۔ سامنے والے کو اپنی بات کا جواب نہ دیتے ہیر غصے میں کہتی ہے، Police will arrive soon، you are all dead، I already submit my report، you will all destroy۔ گہری سانس لیتے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، What we are going to destroy؟ ہیر ہنستے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، Really you think you can؟ ہیر گن کا دوبارہ ٹریگر چڑھائے ہوئے کرسی کے پیچھے کھڑی ہو کر کہتی ہے، Yes I can۔ آدمی ہیر کو لال سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، How؟ If I am not going to give a single second chance to breathe again, then how you can destroy us؟ ہیر دونوں ہاتھ کرسی پر رکھ کر آدمی کے کندھے سے خون نکلتا دیکھتے ہوئے کہتی ہے، I say I already submitted my report۔ آدمی درد میں کراتے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، You and I we both know that you are lying، but you are lying with so confidence، amazing۔ ہیر ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے کہتی ہے، You are behaving so strange، that's mean there is someone else who's helping you out۔ ہیر کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے، Who is that؟ Tell me his name and I promise I will leave you۔ Tell me۔ ہیر جھک کر آدمی کی لال سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، I'm not going to tell you۔ آدمی غصیلے لہجے میں کہتا ہے، That's mean you are a partner is here۔
योर पार्टनर इज़ हियर। हीर अपनी बात पर मुत्तफिक होते हुए उस आदमी से एक कदम दूर होती है। ऐसे पता करते हैं मेरी जान। हीर निक को देखते हुए आदमी के दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच निक को देखते हुए गोली चला देती है। आदमी के सर से खून तेज़ी से बहने लगता है और उसी पल वो मर जाता है। उसके पार्टनर है यहाँ पर, मतलब गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, ऐसी की तैसी इन सब की। हीर कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ रही होती है कि निक उसका हाथ पकड़कर उससे रोक देता है। डेविल ने कहा है कि इस मसले को वो बाद में खुद देखेंगे। निक हीर का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए कहता है, डेविल देखे या मैं देखूं, बात तो देखने की है ना। हीर अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है और कहकर आगे की तरफ बढ़ती है। वो कदम ही चली थी कि आगे से सीढ़ियाँ आ गई है, जहाँ से वो नीचे के पूरे हॉल में सफ़ेद रंग की रोशनी में डायमंड के साथ काम करते हुए लोगों को देखती है। एक नज़र में ही वो सबको अच्छे से देखते हुए गन अपने कोट में पीछे की तरफ लगाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है। स्टॉप योर वर्क। हीर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए हुक्माना लहजे में कहती है। हीर को देखते हुए सब वर्कर्स उठ खड़े होते हैं डायमंड्स के टेबल से दूर होकर। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अगेन, आई हैव टू गो बैक। हु इज़ द रिपोर्टर। हीर डायमंड पर होते हुए कामों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए पूछती है। पीछे से निक के साथ साथ बाकी सारे आदमी भी जो पहले ही अंदर थे वो भी, और जो हीर के साथ आए थे वो सब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। हीर के पीछे पीछे उन सब को देखकर लोग डर के मारे अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन का सामना वो एक बार पहले भी कर चुके थे। फ़र्क इतना, इस वक्त जहाँ हीर खड़ी है वहाँ डेविल था पहले। सो आर ऑल नॉट गोइंग टू आंसर मी? शुड आई किल यू इंस्टेड ऑफ आंसर? हीर चलते हुए नीचे के कारखाने के दरमियान में सफ़ेद रंग के एक स्क्वायर शेप की टेबल पर, जिसकी लाइट्स फर्श के कोने कोने को रोशन कर रही थी, हीर उस पर चढ़कर सबको देखते हुए कहती है। इस वक्त कारखाने में 70 से 80 अफराद मौजूद थे जो हीर के आगे सर झुकाए हुए खड़े थे। स्टार्ट फायरिंग। हीर पलटते हुए कहती है। उसके हुक्म पर गार्ड्स हवा में फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये पागल हो गई है, आज सबको मार कर ही दम लेगी। निक हीर को आसपास के लोगों को देखते हुए कहता है। निक की बात सुनते हुए उसके पीछे खड़े हुए गार्ड्स में से एक अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है। स्टॉप स्टॉप प्लीज़ मैम, स्टॉप, आई विल टेल यू। एक लड़की गोलियों की आवाज़ पर डरते हुए हीर के पास आती है। उसकी टांग को पकड़कर वो रोते हुए इल्तिजा करती है। हु इज़ दिस? हीर सर झुकाकर उससे पूछती है। शी इज़ द वन। हीर लड़की के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। हीर देखने के लिए जैसे ही पलटती है, उसके करीब खड़ी हुई लड़की दूसरों की नज़रों से खुद को बचाते हुए अपनी शर्ट के नीचे से गन निकाल कर लड़खड़ाते हुए हीर की टांग पर गोली चला देती है। गोली लगते ही हीर फौरन से इस क्यूब पर घुटने के बल गिर जाती है, पर वो नीचे गिरती उससे पहले वो खुद को मजबूत कर चुकी थी। गोली की आवाज़ पर सब लोग झट से दौड़ते हुए उसके करीब आते हैं, सिवाय उस एक गार्ड के जो अपने हाथों की मुट्ठियां भीजे हुए अपनी जगह पर साकित खड़े हुए हीर को लगने वाली गोली को देख रहा होता है। हीर के अतराफ में मौजूद लोग सब के कदम रुक चुके थे, क्योंकि गन हीर के सर पर तानी जा चुकी थी। यू थिंक यू कैन हैंडल दैट? हीर अपने जख्म पर हाथ रखकर अपने हाथ पर अपनी टांग से निकलते हुए खून को देखते हुए कहती है। वट इफ़ आई कांट? दैट्स ओके, आई नो आई एम गोइंग टू डाई एट द एंड, बट नॉट लाइक दैट, आई एम गोइंग टू डाई विथ यू। लड़की गन का ट्रिगर चढ़ाते हुए कहती है। हीर गन का ट्रिगर चढ़ते हुए देखती है और देखकर वो मुस्कुरा देती है। वाई आर यू स्माइलिंग? ये लड़की हीर से पूछती है। बिकॉज यू हैव गट्स। हीर अब भी मुस्कुराते हुए कहती है। येस आई हैव, दैट्स वाई आई एम हियर टुडे टू शो योर रियल फेस टू पब्लिक। लड़की गुस्सीले लहजे में हीर की आंखों में देखते हुए कहती है। पब्लिक? बेबी गर्ल, पब्लिक already know us, don't you know? Not even. In that country we are famous in all around the world. You are only one who, we are so many people, you can't beat us. निक हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पर गन हीर के सर पर देख कर वो रुक जाता है। आई एम नॉट अलोन हियर, आई हैव माई ह्यूमन पावर। लड़की कहते ही हाथ से अपने आदमियों की तरफ इशारा करती है। वो इशारा करती है और सबकी नज़र उसके साथियों की तरफ उठती है। वो सब से अपनी अपनी गन्स लिए हीर और उसके आदमियों की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही इन सब पर भारी भरकम फायरिंग होती है, जो उनके दिमागों पर ऊपर से लगे उन सब को लाशों में मुब्तला करते जाते हैं और बाकी मौजूद लोगों को डरा कर एक तरफ जमा कर चुकी थी। डर के मारे हर तरफ चीखों की आवाज़ें तेज़ी से शुरू हो चुकी थी। गोली की बौछार पर हीर के साथ साथ लड़की हैरानगी से और बाकी सब सर उठाकर
गोली चलने वाले लोगों को देखते हैं। उन्हें देखकर सब के सब हैरान रह जाते हैं। अली, अजरा, एनोस तीनों AK-47 अपने अपने कंधे पर रखे हुए हीर को देखते हुए हवा में हाथ हिलाते हैं। हीर उनको देखकर समझ नहीं पा रही थी कि खुश होना है या अफसरदा। देयर इज़ नो ह्यूमन नाउ, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? पीछे खड़ा हुआ गार्ड अपने हेलमेट को उतारते हुए कहता है। गार्ड अब सबकी नज़रों का मरकज़ वो बन चुका था। ब्लैक कलर की जीन्स शर्ट पहने हुए, सर से पैर तक अपना आप को कवर किए हुए, पसीने से तर बालों में ग्लव्स वाला हाथ फेरते हुए लड़की को देखता है। फरजान को देखकर ही लड़खड़ाते हुए दर्द में के ऊपर गिर जाती है। निक की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वजदान की मौजूदगी पर जिस शख्स को इस जगह से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, वो बआसानी उस जगह पहुंच चुका था और ऐसे खड़ा हुआ था जैसे वो जगह उसी के बाप की थी। वजदान, हीर धीरे से कहती है। हु आर यू? लड़की गन हीर से हटाते हुए वजदान की तरफ करते हुए पूछती है। ही इज़ माई हस्बैंड, वी बोथ आर डेड नाउ। हीर मासूम सी रोतलू सी शक्ल बनाकर धीरे से कहती है। वी नीड टू डू दैट नाउ, यू आर ऑल्सो डेड। हीर लड़की की गन नीचे करते हुए कहती है। व्हाट शुड आई डू विथ यू? वजदान हाथ में हेलमेट पकड़े हुए हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है। उसके बढ़ते हुए कदम उसके सामने से आदमियों को खुद ब खुद हटने पर मजबूर कर रहे थे। यू हर्ट माई गर्ल। वजदान बिना हीर के चेहरे की तरफ देखे उसकी टांग से निकलते हुए खून की तरफ देखते हुए कहता है। लड़की अपने आप को इतने लोगों में तन्हा देखते हुए बौखलाते हुए हाथ से गन फेंके भागने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स उसका रास्ता रोक देते हैं। लीव फ्रॉम माई वे। लड़की हलक केवल चीखते हुए कहती है। यू केम इन आवर वे। निक उस लड़की के सामने खड़े होते हुए कहता है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू किल मी? किल मी देन जस्ट किल मी। सनकी सी क्या लड़की है? निक उसको गुस्से में चीखते हुए देखते हुए कहता है। लीव हर। वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए आदमी उसे कहता है। पर क्यों? ये कहीं नहीं जाएगी। निक वजदान की बात पर इनकार करते हुए उसकी तरफ देखता है। कह दिया न जाने दो तो जाने दो। वजदान मुड़कर निक की आंखों में देखते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहता है। ये दुश्मन है हमारी, इसे मारना पड़ेगा वरना इस जैसे कहीं और सामने आ खड़े होंगे। निक वजदान के करीब होते हुए कहता है। वजदान यमान किसी लड़की से दुश्मनी नहीं करता है, जाने दो इसे। किसने ये किया है इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारी बात मानना फ़र्ज़ नहीं है मुझ पर। उसे किसी ने भी यहाँ भेजा है, ये जाने बगैर तो इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा मैं। निक उस लड़की की तरफ देखते हुए तैश में वजदान से कहता है। शिकारियों से उलझते नहीं है और औरत दुनिया की वाहिद शिकारी है जो खुद शिकार होकर अपना शिकार करवाती है। उन्हें खुद में उलझाना पड़ेगा अगर इनसे जीतना है तो। ये इस शिकारी को हमारे पीछे लगाने वाले इंसान को मैं ढूंढ लूँगा, तुम फिक्र मत करो। वजदान निक के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहता है। तुम्हारी बात क्यों माने हम? हो कौन तुम? निक तंज़ लहजे में पूछता है। डेविल की बेटी का हस्बैंड, इतनी पहचान काफ़ी है तुम्हारे लिए। निक की तरफ बढ़ते हुए दो टोक अंदाज में कहता है। और जहाँ मुझे पता है इस माइन का मालिक भी मैं ही हूँ, इनडायरेक्ट तुम्हारा मालिक भी। वफादार लोग सवाल नहीं उठाते हैं, सिर्फ हुक्म की तामील करते हैं। वजदान की बात पर निक के दिमाग की शरियान फटने पर आ गई थी। गुस्से में मुब्तला वो सुबह से था, अब वजदान का हुक्माना अंदाज उसका दिमाग मजीद ख़राब कर रहा था। पर वो कुछ नहीं बोलता है। पलट कर अपने आदमी को धक्का देते हुए लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से चला जाता है। निक के जाते गार्ड लड़की को भी जाने देते हैं। उसे जाता देख वजदान अली को इशारा करता है और ख़ुद पलटकर एक सरसरी सी नज़र पूरे कारखाने में हर तरफ टेबल पर पड़े हुए डायमंड पड़े हुए थे। डायमंड से नज़र हटाकर वो एक लोहे के बड़े और मजबूत दरवाजे की तरफ देखते हुए वो हीर की तरफ मुड़ता है। मिल गया सुकून खुद को तकलीफ देकर। वजदान हीर को देखते हुए कहता है। निक नौकर नहीं है, वो दोस्त है मेरा। हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहती है। मेरी बीवी का दोस्त सिर्फ और सिर्फ मैं। जिस तरह तुम्हें किसी और मर्द के मुंह से ही मेरा नाम सुनना नहीं पसंद है, उसी तरह मुझे भी नहीं पसंद। वजदान झुककर हीर की आंखों में देखते हुए कहता है। तुम्हारे गुस्से की इंतहा का पता नहीं मेरी जान, पर जब बात मेरी मर्जी के खिलाफ हो जाती है तो चीर फाड़ करने से पहले मैं एक दफ़ा नहीं सोचता हूँ। वजदान फुलतैश में काट खा जाने वाली नज़रों से हीर की आंखों में देखते हुए कहता है। उसका बस नहीं चल रहा था इन आंखों में उसके अलावा देखने वाले हर शख्स की आंखें वो अपने हाथों से नोच डाले। वजदान हीर वजदान के कान गुस्से में लाल सुर्ख होते हुए देखकर धीरे से उसका नाम पुकारती है। हीर के मुंह से अपना नाम सुनते ही वजदान सर झुकाकर सांस लेता है और अपने गुस्से को जब्त करता है। तुम शुक्र मनाओ मैंने उसके साथ ज़बान का इस्तेमाल किया है, वरना दिल तो उसका सीना चीर कर दिल निकाल कर इटली के कुत्तों को खिलाने का कर रहा था। अगर आइंदा तुमने उसका नाम लिया, उसकी तरफ देख कर मुस्कुराया है तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले
पहले भी एक बार नहीं सोचूंगा। वजदान हाथों की मुट्ठियां बनाए क्यूब पर भिजे हुए रखते हुए कहता है, मुझे गवारा नहीं कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी देखे, या बात करे या तुम किसी से बात करो। अगर जो आज हुआ वो दोबारा हुआ तो ब्लेड का अगला निशाना तुम बनोगी। फैजान हीर की आंखों में देखते हुए गुस्से में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए सख्त लहजे में कहता है। फैजान की बातों पर हीर की सांसें उसके हलक में अटक गई थी। ना वो ले पा रही थी और ना ही वो छोड़ पा रही थी। उसकी बातों से उसके चेहरे पर जाहिर होते हुए गुस्से से हीर को आज सच में पहली मर्तबा उसे डर लगने लगा था। डर के मारे हीर अपना सर झुका लेती है। उसका झुका सर देखकर फैजान सीधा होकर खड़ा होता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। आप यहाँ क्यों है? हीर फैजान के चेहरे को सर उठाकर देखते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत थी मेरी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। फैजान हीर को अपनी बाहों में उठाए हुए कहता है, आप खामोश। हीर बोलने ही लगी थी कि फैजान गुस्से में कहकर उसे चुप करवा चुका था। इस वक्त खामोश रहो हीर, पहले ही दिमाग खराब हो रहा है। फैजान सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए कहता है। फैजान की बात हीर एकदम खामोश हो जाती है। खामोश होकर बस फैजान के चेहरे को देखती रहती है। आपको आपकी डायमंड माइन मिल गई, मुबारक हो। हीर से मजीद खामोश नहीं रहा जा रहा था तो बोल पड़ती है, पर ऐसे नहीं चाहिए थी ये मुझे। फैजान कारखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है। उसके पहुंचते ही दरवाज़ा खुल जाता है। उसे खुलता देख कर हीर जल्दी से अजरा की तरफ देखती है, जो आईपैड से उसको खोल रही थी। फैजान, ये चीटिंग है। हीर मुंह फेरते हुए कहती है। जो तुमने किया है उसको क्या कहेंगे? फैजान कारखाने से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहता है। वो मेरा काम था। हीर अटल लहजे में कहती है, तो ये मेरा काम है। फैजान भी अटल लहजे में कहता है और कहकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हीर को गाड़ी में बिठाता है। आ गया सुकून टांग तुड़वाकर। फैजान ड्राइविंग सीट पर बैठकर हीर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आ गया। हीर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है? फैजान सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, हो रहा है पर ज़्यादा नहीं, गोली लग कर गई है। उसको गन चलाने नहीं आती थी। हीर हंसते हुए कहती है, शुक्र मनाओ कि उसे नहीं आती थी, वरना तुम्हारा लंगड़ा होना पक्का था। फैजान गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, तो क्या आप मुझे छोड़ देते? हीर झट से मुड़कर पूछती है, ये बात कहाँ से आ गई? फैजान गाड़ी चलाते हुए पूछता है, आप जवाब दे, अगर मैं लंगड़ी हो जाती तो क्या आप छोड़ देते मुझे? तुम्हारे लंगड़े होने से मेरी मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए तुम जितनी अजीज अब हो, हमेशा उतनी ही रहोगी, हमारे बच्चों के बाद भी। हीर सीरियस फेस में पूछती है, हाँ तब भी? फैजान हीर के गाल खींचते हुए कहता है, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर घर चलेंगे। वैसे अच्छा हुआ कुछ दिन घर में टांग कर टिक कर तो बैठोगी। वजदान गर्दन मोड़कर हीर पर नजर डालते हुए कहता है, गलत फहमी है ये आपकी, ये चोट कुछ नहीं बिगाड़ सकती है मेरा। हीर अपनी टांग की तरफ देखते हुए कहती है, अल्लाह अल्लाह, कितना खून निकल गया है मेरा। आह जल्दी करे वजदान, कोई और मसला ना हो जाए, सच में लंगड़ी नहीं होना है मुझे। हीर वजदान के बाजू पर हाथ मारते हुए कहती है। हीर की हरकत पर वजदान का कह कहा बुलंद आवाज़ में लगता है, हंसे मत, गाड़ी चलाए। हीर जोर से हाथ मारते हुए कहती है और दोनों हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। फैजान को हंसता देखकर हीर सुकून की सांस लेते हुए शीशे से बाहर देखती है। जब तक वो गुस्से में था हीर की सांसें अटकी हुई थी, अब उसे पुरसुकून देखकर उसे भी सुकून मिला था। टांग में लगी चोट से ज़्यादा उसे वजदान का रवैया दर्द दे रहा था। गलती हीर की थी, हीर की अपनी थी, इसलिए वो खामोश रहती है, वरना उसके आंसू तो आंखों से बहने के लिए तैयार थे। सिकंदर और उमैमा भी हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे। घर में डिनर की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। आयना, बनीश और हया मुकम्मल टेबल सेट कर चुकी थी। कुछ तैयारियां रह गई थी जिसमें उमैमा उनकी मदद करवा रही थी। बाकी बस खुद का तैयार होना रह गया था। उमैमा भी वापस आकर उनके साथ किचन में हेल्प करवाने में जुट जाती है। अरे दूसरे मेहमान को इनवाइट ही नहीं किया है। सिकंदर कमरे में सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप पर अपना हॉस्पिटल का ऑफिस रूम डिज़ाइन करते हुए खुद से कहता है और कहते ही अपना फ़ोन कोट की जेब से निकाल कर वजदान को कॉल लगाता है। वजदान और हीर भी हॉस्पिटल से वापस आ गए थे। दोनों हॉल में बैठे हुए थे। हीर टीवी पर पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रही थी और वजदान अपने काम में मसरूफ़ था। सिकंदर की कॉल आते देख कर वो सामने टेबल से फ़ोन उठाए फ़ोन कान से लगाता है। कैसा है डार्लिंग? सिकंदर मुस्कुराते हुए पूछता है। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? वजदान फाइल्स को देखते हुए जवाब देता है। वजदान की आवाज़ पर हीर की फ़ौरन नज़र वजदान पर पड़ती है। तेरी जुदाई में कैसा हो सकता हूँ मेरी जान, शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गया है। सिकंदर सोफे से उठकर गैलरी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हाँ जैसे तू तो सारा दिन मेरा ही नाम जपता रहता है साले। फैजान फाइल बंद किए हीर के हाथ से पॉपकॉर्न का डब्बा लेते हुए कहता है, तुझे क्या पता मेरी जान, पहले प्यार की जुदाई में कितना दर्द होता है। सिकंदर अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, ओवर एक्टिंग बंद कर और काम बोल। वजदान टैबलेट और पानी का गिलास हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है,
अच्छा तो समझ गया। सिकंदर दीवार पर हाथ मारते हुए कहता है, अच्छा सुन, आज रात को डिनर है, घर आ जाना, किसी से मिलवाना है तुझे। सिकंदर दीवार से हाथ हटाए बालों में फेरते हुए कहता है, कैसा डिनर? वजदान हीर के हाथ से ज़बरदस्ती पानी का गिलास खींचते हुए बोला। वो फिल्म देखने में इतनी मगन हुई पड़ी थी कि उसे होश ही नहीं रहा था। जो खा रही थी वो खाती जा रही थी, जो पी रही थी वो पीती जा रही थी। दामाद के वेलकम में डिनर का एहतमाम किया जा रहा है तो मैं अपने दामाद को इनवाइट कर रहा हूँ। सिकंदर रेलिंग पर हाथ रखते हुए कहता है, अव्वल तो मैं तेरा दामाद नहीं हूँ और दूसरी बात, मेरी सासू माँ से इजाज़त ली है। वजदान किचन की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। हीर की नज़र मुसलसल एलईडी पर थी, पर सुन वो सारी वजदान की बातें रही थी। ऐसा ना हो मैं घर में आ जाऊँ और वो मेरा इस्तकबाल फूलों से नहीं गोलियों से करेंगी। भरी जवानी में अपनी बीवी को बेवा नहीं करना चाहता हूँ। वजदान किचन से सोफे पर बैठते हुए लेटने बैठे और लेटे की मिक्सचर में लेटी हुई हीर को देखकर हंसते हुए कहता है, डोंट वरी डार्लिंग, अगर तुम्हारे इस्तकबाल की जगह इंतकाल हो गया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा और उस पर सफ़ेद रंग के फूलों की चादर भी बिछाऊंगा। सिकंदर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, लिख दी लानत तेरी शक्ल पर मनहूस इंसान, बस यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। फैजान चिड़े हुए लहजे में कहता है, बस देख ले, फिर उम्मीदों पर पूरा उतारना आता है। आज रात 9 बजे तक डिनर पर आ जाना, मेहमान का इस्तकबाल हम दोनों ने करना है। सिकंदर वापस कमरे में दाखिल होते हुए कहता है, कौन सा मेहमान? वजदान किचन में सिंक में ग्लास रखते हुए बाहर निकलते हुए पूछता है कोई जिसने बहुत लंबा इंतज़ार किया है तुझसे मिलने के लिए। अब मज़ीद मत करवा और आ जा। सिकंदर सोफे पर लैपटॉप साइड पर करते हुए बैठते हुए कहता है, कोई लड़की है? वजदान हीर के पास बैठते हुए पूछता है, कौन लड़की? हीर झट से पूछती है, कोई नहीं। वजदान हंसते हुए मुंह फेर लेता है, ठीक है मेरी जान, आ जाऊंगा, मैं फिक्र मत करो। आ जाऊंगा मैं, फिक्र मत करो। वजदान कहते ही फ़ोन बंद कर देता है। किस लड़की का जिक्र हो रहा था? हीर सीधी होकर बैठते हुए कहती है, किसी का नहीं। वजदान हीर के सामने खड़े होते हुए कहता है, वजदान बताए मुझे। हीर सर उठाकर उसे देखते हुए कहती है, कोई नहीं है बच्चे, कोई भी नहीं है, मजाक कर रहा था। चलो अब डिनर की दावत आई है, वो भी ससुराल से, मना तो नहीं कर सकते हैं। तैयार होते हैं चलकर। हीर वजदान को गोद में उठाते हुए कहता है, आज तुम क्या पहनोगी? वजदान हीर को हॉल से बाहर ले जाते हुए पूछता है, कुछ नहीं पहनूंगी मैं। हीर चिढ़ते हुए जवाब देती है, ओह गंदी बच्ची, मेरे सामने मत पहनना, पर बाहर जाना है तो कपड़े पहनने ज़रूरी है। वजदान हंसते हुए कहता है, आप ये बताएं, सच में कोई लड़की नहीं है ना? उस दिन वो डिज़ाइनर भी कह रही थी कि आपका एक लड़की से दिल नहीं भरता है। देखिए, अगर मुझे धोखा दिया ना, मैं सच में बेवा होने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। कितनी ख़राब हो तुम, पक्की बीवी बन चुकी हो, शक करने लग गई हो तुम मुझ पर। फैजान हीर को ड्रेसिंग रूम में ले जाते हुए कहता है, जब शौहर आप जैसा होना तो ना चाहते हुए भी शक दिल में आ ही जाता है। कोई लड़की नहीं है, जो भी थी वो तुमसे पहले थी, अब जो भी हो तुम ही हो। फैजान हीर ड्रेसिंग रूम के सामने रूम के दरमियान में पड़े हुए सोफे पर बिठाते हुए कहता है, चलो ये बताओ आज क्या पहनोगी? फैजान खुद कोई फरमाइश करने के मूड में था, पर डायरेक्ट बोल नहीं रहा था वो हीर को। वहाँ से कोई भी ट्राउज़र शर्ट पहन लूँगी, दावत आपके लिए, मेरी तो पिटाई डे है, वो भी मेरी माँ से होने वाली है मेरी। हीर हया के रद्द अमल के बारे में सोचते हुए कहती है, नहीं तुम आज वो वाला वाइट गाउन पहनोगी। फरजान उंगली से हीर के कपड़ों वाली साइड पर अलग से खूबसूरत सा सिंपल सा टखनों तक लॉन्ग गाउन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नहीं। हीर झट से मना कर देती है, क्यों? फरजान कमर पर हाथ रखकर पूछता है, इसको पहनने के बाद सिर्फ मुझे दफनाना रह जाएगा। हीर गाउन को देखते हुए कहती है, बकवास मत करो, शराफत से पहनो इसे, कितने दिन हो गए हैं मेरी पसंद का कुछ नहीं पहना है तुमने। वजदान शिकायती अंदाज में कहता है, तो पहन लूँगी आपकी पसंद का भी, जल्दी पर आज नहीं। हीर वजदान के सामने खड़ी होते हुए कहती है, टांग पर उसको गहरी चोट नहीं लगी थी, पर खिंचाव की वजह से हल्का हल्का दर्द हो रहा था। पहन लो ना यार। वजदान हीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है। वजदान क्यों है इतने ज़िद्दी आप? कभी तो मेरी बात मान जाया करे। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है, कभी तो मुयस्सर हो मुझे जैसे मैं चाहूँ, कभी तो मान रख लिया करो मेरी ज़िदों का यार। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए बेबसी से कहता है, अपनी दुनिया पर हुकूमत करने वाला कैसे एक कम उम्र लड़की के सामने बेबस हुआ खड़ा था। कोई वजदान को इस रूप में देख ले तो उसकी इज्जत का जनाजा ही निकल जाए। वजदान मासूम सी शक्ल बनाए हीर के चेहरे की तरफ मुसलसल देखता रहता है। अच्छा पहन लेती हूँ, ऐसा मुंह तो मत बनाए जैसे मारा हो मैंने आपको। हीर गाउन की तरफ देखते हुए कहती है, मारती तो रहती हो,
रहती हो तुम मुझे, कभी अपने आंसुओं से तो कभी अपनी अदाओं से। वजदान हीर की कमर को अपने सीने से लगाए उसके कंधे से बाल हटाए हुए कहता है, वजदान जिस ट्रैक पर जा रहे हैं आप मत जाए। हीर मुड़कर वजदान के गाल पर उंगली रखते हुए कहती है, क्यों मना है या पाबंदी है मुझ पर? वजदान हीर की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछता है, ना मना है और ना ही पाबंदी है आप पर इस वक्त ठीक नहीं है, देर हो जाएगी। हीर कहते हुए वजदान से दूर हो जाती है। तो सही वक्त कब आएगा? वजदान हाथ से उसका छोते देखते हुए बोला, बहुत जल्द। अच्छे की उम्मीद रखे। हीर वजदान के हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, आह तुम्हें चोट लगी है, तुम खुद कैसे करोगी? वजदान कहते ही दोबारा हीर के पास आ जाता है। क्या चीज़? हीर हैरानगी से पूछती है। कपड़े चेंज, चोट लगी है ना तुम्हें, मेरी मदद चाहिए होगी, मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, और कहते ही हीर को छोड़े उसके कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ता है। बहुत ही ख़राब इंसान है आप तो, मेरी फिक्र छोड़े और अपने कपड़े लेकर जाए, मैं तैयार हो जाऊंगी। बाजू पकड़कर उसे जाता रोक अपने सामने किए कहती है, तुम्हें चोट लगी है? वजदान हीर के करीब आकर कहता है, टांग पर लगी है, हाथ सलामत है मेरे? हीर वजदान के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती है। नीयत खराब है तुम्हारी, और कुछ नहीं है तुम्हें? वजदान मुंह बसोरे हुए कहता है और कहकर अपने लिए कोई भी पहला सूट हैंगर समेत ले लिए वो ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने लगता है। 20 मिनट में तैयार हो जाना, 8 से ऊपर का टाइम हो गया है। फैजान उंगली उठाकर घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप जाए, 10 मिनट में हो जाऊंगी। ये दरवाजे की तरफ दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहती है, 10 मिनट में तुम हो ही ना जाओ तैयार। फैजान गर्दन झटकाते हुए कहता है और कहकर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद किए अपने कमरे में चला जाता है। हीर भी कपड़े लिए वॉशरूम में फ्रेश होकर चेंज करने चली जाती है। जहांगीर सिकंदर दोनों तैयार हुए हॉल में बैठे हुए एक दूसरे को खामोश नजरों से देख रहे थे। ऐसे क्यों घूर रहे हैं? सिकंदर जहांगीर से पूछता है। मेरी आंखें मेरी मर्जी, जहांगीर दो टोक लहजे में जवाब देता है। जैसा ससुर वैसी बहू, सीधा जवाब देना किसी को नहीं आता है। सिकंदर गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए और कहते कहते खड़ा हो जाता है। इतनी देर लगा दी है, अब तक कोई क्यों नहीं आया है? सिकंदर कोट की जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए खुद से बोलता है और बोलते बोलते वो सिसिन को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन वाइब्रेशन पर था। फ़ोन उठाने वाले की नज़रें उसी फ़ोन पर थी, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। ब्लैक कलर की चमकती हुई लाइट ब्राउन कलर की सीट से टेक लगाए हुए गाड़ी में सवार बैक सीट पर शहंशाही अंदाज में सिसिन अपने पेट पर रखा हुआ, जिसकी स्क्रीन पर सिकंदर की तस्वीर फ़ोन के साथ बज रहा था, मुसलसल उसी को देख रहा था। पर उसी के एक बार फ़ोन करने पर वो कॉल नहीं उठाता, बल्कि फ़ोन ही उठाकर सीट पर रख देता है और ख़ुद गाड़ी का शीशा नीचे किए सीट से पुश्त और सर टिकाए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर का इंतज़ार और फिर हर चेहरा एक दूसरे के सामने होगा। हर दोस्त, हर नया पुराना दुश्मन सब आमने सामने होंगे। सिसिन उरूबी बंद आंखें किए दिल ही दिल में कहता है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? सिकंदर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है और कहते ही वो सरसरी सी नज़र उठाकर अपने सामने देखता है। उसकी सरसरी सी नज़र तो सामने से हट गई थी, लेकिन उसका दिमाग वहीं ठहर गया था। सिकंदर दोबारा फ़ोन से नज़र उठाकर अपने सामने से आती हुई मैमा को ब्लू कलर की लॉन्ग गाउन में मलबूस देखकर उसकी नज़रें पल के सिकंदर का वजूद, हर चीज़ रुक जाती है। मोबाइल पर चलने वाले हाथ उमैमा की मौजूदगी ने उन्हें भी रोक दिया था। ब्लू कलर के गाउन पर लाइट सॉफ्ट ब्राउन सा मेकअप किए हुए उमैमा ने अपने चेहरे के हर नकोश को बहुत अच्छे से निखारे अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाए थे। उमैमा के सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए कदम सिकंदर को पल के झपकाने पर मजबूर कर रही थी और साथ साथ दिल की धड़कनें भी। कैसी लग रही हूँ? उमैमा मुस्कुराते हुए सिकंदर से पूछती है और उसके अच्छे से जवाब का इंतज़ार करती है। छोटू सी डोरेमोन लग रही हो। सिकंदर उमैमा की आंखों में देखते हुए कहता है डोरेमोन? उमैमा झट से अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए अपनी टांगों की तरफ देखती है और देखते ही वो सिकंदर के बाजुओं पर थप्पड़ मारने लग जाती है। आज वो हॉस्पिटल के नाम करवाने की खुशी में आज पहली बार उसके लिए तैयार हुई थी, पर सिकंदर के कंप्लेंट ने उमैमा को कमिन ने उमैमा को अपने तैयार होने पर अफसोस करवा दिया था। जहन्नम में जाए। उमैमा कहते ही सिकंदर को क्रॉस किए पैर पटकते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। मेरे ससुराल, हाँ यार चलो, मैं भी उनसे नहीं मिला हूँ आज तक। बेटी दी उन्होंने मुड़कर पूछा ही नहीं मुझे। सिकंदर उमैमा के पीछे पीछे चलते हुए कहता है, सिकंदर। उमैमा मुड़कर गुस्सेले लहजे में कहती है, जी। सिकंदर उसके गुस्सेले लहजे को देखते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहता है, भाड़ में जाए। उमैमा कहते ही सिकंदर को पीछे की तरफ धक्का दिए खुद किचन में खुद आयना के पास चली जाती है। ये आज मेहमानों ने आना है या नहीं? आयना उमैमा को देखते हुए पूछ बैठती है। मुझे क्या पता, जैसा खुद सर ये
आदमी वैसे खुदसर उसके मेहमान, वक्त की कदर किसी को भी नहीं है। उमामा पैर पटकते हुए फ्रिज के पास जाती है और पानी की ठंडी ठंडी बोतल निकाल कर बोतल से ही मुंह लगाए पानी पीने लगती है। ऐसे कौन से 30 मार खां साहब आ रहे हैं जो अब तक पहुंचे ही नहीं। हम सुबह से उनके एहतमाम में जुड़े हुए हैं और उन्हें वक्त की कदर ही नहीं है। आयना मुड़कर उमामा को गुस्से में देखते हुए कहती है। हया भी तैयार होकर लाइट स्किन कलर की कमीज शलवार पहने हुए, कंधे पर दुपट्टा सेट किए, वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंची ही थी कि हया की नज़र खामोश जहांगीर पर पड़ती है, जो हाथ की मुट्ठी बनाए उस पर अपना सर टिकाए हुए खिड़की से देखने में मसरूफ था। हया जहांगीर की तरफ बढ़ ही रही थी कि सिसिन की गाड़ी हवेली के दरवाजे के बाहर आ जाती है। उसकी आवाज़ हर किसी को सुनाई देती है, पर सब अपनी अपनी जगह पर खड़े गुस्से में मुड़कर नहीं देखते। ये सिकंदर अकेला दरवाजे पर खड़ा उनके इस्तकबाल कर रहा होता है। लो आ गए तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए तुम्हें। उमैमा आयना से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। आयना जैसे ही पलटकर बेजार अंदाज में देखती है और बस देखती ही रह जाती है। सफ़ेद रंग पर ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस, जिसके कोट के बटन बंद थे, हर किसी की तवक्का से ज़्यादा जवान और वजीह, क्लीन शेव चेहरा, हर निशान हर चीज़ से साफ, जल से बाल सेट किए हुए, पुरकश चमकदार आंखें, ना चाहते हुए भी आयना से सीन से नजरें नहीं हटा पा रही थी। सिकंदर को मिलता देख हया भी सीन से मिलने के लिए आगे बढ़ती है और सिकंदर के साथ उसका इस्तकबाल करती है। जहांगीर अपनी जगह पर बैठा हुआ अपने हाथों की मुट्ठियां मजीद जोर से भींचने लगता है। ना चाहते हुए भी वो उठने पर मजबूर हो गया था सचिन के इस्तकबाल के लिए। एक हाथ पैंट की जेब में डाले हुए, दूसरे हाथ की शहादत की उंगली होठों पर रखे हुए, नजरें फर्श पर जमाए जहांगीर लिविंग एरिया से बाहर निकल जाता और हॉल में ससीन की आंखों के सामने जा खड़ा होता है। सिकंदर और हया से मिलकर ससीन जैसे ही जहांगीर को देखता है, उसके दिमाग की रगें तन जाती है, आंखों में खून उतरने लगता है, पर दोनों अपने अपने गुस्से को कंट्रोल एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ससीन मुस्कुराते हुए जहांगीर की आंखों में आंखें डालकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जहांगीर सरसरी सी नजर ससीन से हटाकर उसके पीछे खड़े हुए सिकंदर पर डालता है, जो सीरियस फेस के साथ उन दोनों को देख रहा था। सिकंदर की नज़रें अपने बाप पर होती है। वो उसकी हिफाजत करने वाले, आग से बचाने वाले शख्स के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं। हया की भी नज़रों का मरकज़ भी इस वक्त जहांगीर ही बना हुआ था। वो खामोश ज़रूर था, पर गुस्से में पागल हो रहा था। जहांगीर सिकंदर से नज़र हटाकर ससीन से हाथ मिलाता है। वेलकम टू द डेविल्स मैंशन। बहुत बहुत शुक्रिया। ससीन अपना हाथ वापस छुड़वाते हुए कहता है। वजदान नहीं आया अभी तक? ससीन मुड़ते ही सिकंदर से पूछता है। नहीं, अभी नहीं आया है, वो आने वाला है। सिकंदर ससीन की तरफ बढ़ते हुए कहता है। आ जाए आप, बैठे प्लीज़। सिकंदर लिविंग एरिया की तरफ लिए ससीन को बढ़ाता है। हया की नज़रें मुसलसल जहांगीर पर थी। उसे उसका रवैया खटक रहा था। वो पुरसुकून होकर भी पुरसुकून नहीं लग रहा था। उमैमा आयना को बुत बने देखकर पानी की बोतल शेल्फ पर रखते हुए आयना की तरफ बढ़ती है और उसके पीछे खड़ी होकर उसके कान के पास धीरे से कहती है। बहन नज़र झुका ले, वो हैंडसम है पर अंकल है। उमैमा आयना को बुत बने देखकर उसके पास आती है और बाजू से पकड़कर उसे होश की दुनिया में लाती है। उम्र की किसको पड़ी है मेरी जान, मुझे तो बस उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल घायल कर रहा है। आयना दोनों हाथ चेहरे पर रखते हुए कहती है। पर वो अंकल है। उमैमा आयना का रुख अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहती है। मुझे कबूल है। आयना वापस ससीन की तरफ देखते हुए कहती है। पर वो एक करप्ट पॉलिटिशियन है। उमैमा वापस उसका रुख अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। मुझे कबूल है। आयना फिर ससीन की तरफ देखते हुए कहती है। वो डेविल की उम्र के हैं। उमैमा ससीन की तरफ देखते हुए कहती है। तभी तो मुझे कबूल है। आयना के चेहरे पर उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो डेविल है, सबसे नापसंदीदा शख्स में से एक है। डेविल के सबसे नापसंदीदा शख्स में से एक है। उमैमा आयना का चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है क्या वो डेविल को नहीं पसंद है? आयना बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है। हाँ, वो नहीं करते, वो देख नहीं रहे किन नज़रों से उन्हें देख रहे हैं। उमैमा और आयना दोनों जहांगीर की तरफ देखने लग जाती है। कोई बात नहीं, जब डेविल के दामाद बनेंगे तो उन्हें भी कबूल हो जाएंगे। आयना मुस्कुराते हुए कहती है। तू पागल हो गई है? उमैमा आयना की बाजुओं पर थप्पड़ मारते हुए कहती है। हाँ, उनकी मोहब्बत में। उमैमा के गालों पर टच करते हुए कहती है। मोहब्बत कब हुई? उमैमा हैरानगी से फटी आंखों से देखते हुए पूछती है। बस अभी अभी, वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, बस वही हो गया है मुझे। बाकी का काम तुम देख लेना, मैं चली अपने अंकल को पटाने। आयना हाथ झाड़ते हुए कहती है और कहकर बाहर जाने लगती है, पर उमैमा उसका स्टॉलर पकड़कर उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक देती है। तुमने आज जाना था ना? उमैमा आयना का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछती है।
हाँ, जाना तो था, पर अब पहले अपनी लव लाइफ सेट कर लूँ, फिर चली जाऊँगी। आयना अपना स्टॉलर उमैमा के हाथों से आज़ाद कराते हुए कहती है, कोई लव लाइफ सेट करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए जो होगा वो तुम्हें खुद आकर लेकर जाएगा। तुम नहीं होगी जो किसी के पास भी जाओगी। उमैमा लिविंग एरिया में बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, पर वो रहे। आयना सिसिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो नहीं है। उमैमा उसके हाथ नीचे कर देती है। वो नहीं है तो फिर कौन है? आयना हैरानगी और गुस्से के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाए कहती है, शायद वो। उमैमा दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए शोएब और बनिश के पीछे सर झुकाए हुए ब्लैक कलर की पैंट और ऊपर ब्लैक कलर की हुडी वाली शर्ट पहने हुए, शर्ट के ऊपर डार्क ब्लू कलर का जीन्स स्टाइल वाला कोट पहनकर हवेली में अपने हाथों को मसलते हुए दाखिल होता है। आयना की नज़र जैसे ही निक पर पड़ती है वो जल्दी से अपना मुंह मोड़ लेती है। इस जैसे शख्स से मोहब्बत करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आयना कॉफ़ी के लिए दूध फ्रिज से के लिए बढ़ते हुए बोली, क्यों? इतना अच्छा तो है, पसंद नहीं है तुम्हें? उमैमा आयना को गुस्से में देखते हुए सवाल करती है, हाँ, नहीं पसंद। और इन जैसे शख्स मुझे क्या, किसी भी दिमाग रखने वाली लड़कियों को नहीं पसंद हो सकते हैं। खुद सरसंग की सोच के मालिक है। आयना दूध चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या हो गया है? उमैमा तजस्सुस से पूछती है, डांटा है मैंने उससे, और एक बार नहीं कई बार। किचन की तरफ आता हुआ निक आयना को देखते हुए उमैमा से कहता है, वजह? उमैमा हैरानगी से पूछती है। आयना गुस्से में जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाने लगती है, इससे पूछ लो। निक पानी लेने के लिए किचन में आता है, पानी फ्रिज से निकालते हुए कहता है, हीर तुम 10 मिनट में तैयार होने लगी थी, 40 मिनट लगा दिए हैं तुमने, आ भी जाओ अब। डार्क नेवी ब्लू कलर के चेक वाले 3 पीस सूट पहने हुए, जिसका कोट टेबल पर रखे हुए वजदान सीढ़ियों से नीचे टहल रहा था। कभी घड़ी पहनता तो कभी उतारते हुए थके हुए कहता, आ रही हूँ, इतनी क्या जल्दी है? ही ड्रेसिंग रूम से बुलंद आवाज़ में आवाज़ लगाती है, जल्दी है, मुझे वक्त पर पहुँचना है, देरी पसंद नहीं मुझे। वजदान भी ज़ोर से उसकी बात का जवाब देता है, नीचे आ जाओ शराफत से, वरना मैं आ रहा हूँ। वजदान सीढ़ियों के पास आकर गहरी सांसें लेते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। फरजान कहते ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। वो 2 सीढ़ियों पर चढ़ा ही था कि हीर कमर पर हाथ रखे हुए सीढ़ियों से ऊपर फ्लोर पर खड़ी हुई, एक हाथ रेलिंग पर रखे हुए वजदान को देख रही होती है। वजदान की नज़र हीर के पैरों में गोल्डन कलर के पेंसिल हील पर जाती है और हील से होते हुए धीरे धीरे वो उसको सर से पैर तक देखता है। वजदान हीर को तैयार देख रेलिंग से हाथ हटाया सीढ़ियों से अपने दिल पर रखकर वो सर के बल गिरने वाला होता है। आराम से। हीर वजदान को गिरता देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है। वजदान के दोनों हाथ उसके दिल पर होते हैं। नजरें हीर के चेहरे पर ठहर जाती है, जो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को हो गया था। वजदान गिरता उससे पहले अली झट से आकर वजदान की कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से रोक देता है। अली को देखकर हीर सुकून भरी सांस लेती है और अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो गहरी सांस लेता है। मॉन्स्टर। वजदान की नजरें मुसलसल हीर पर होती है। ना उसे कोई सुनाई दे रहा था, ना उसके अलावा कोई उसे दिखाई दे रहा था। मॉन्स्टर। अली अब की बार नाम पर जोर देते हुए कहता है, वजदान। हीर वजदान को लटका देखकर अली की तरफ इशारा करते हुए कहती है। हीर की आवाज़ पर वजदान जल्दी से अपने पीछे अली को देखता है, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। तौबा। वजदान कहते हुए झटके से अली से दूर होकर खुद को कंपोज करता है। क्या कर रहे हो यहाँ? वजदान अपने आप को कंपोज करते हुए कहता है, वो मैं गाड़ी की चाबी देने आया था, मुझे भी डेट पर जाना है। अली शर्माते हुए हंसते हुए कहता है, तुम्हें भी लड़की मिल गई? वजदान तजस्सुस से उसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेते हुए पूछता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो उसकी नज़र में शर्म व हया बनकर दिखाई दे रही थी। लड़की अंधी है क्या? वजदान उनके झुके हुए सर की तरफ देखते हुए सीरियस फेस में पूछता है, क्यों अंधी होने लगी? वो अच्छी खासी सही सलामत लड़की है। अली ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, जिंदा है या मुर्दा है? वजदान तजस्सुस से धड़कते हुए दिल से एक और सवाल करता है। वजदान की बात पर हीर हंस पड़ती है और हंसते हुए सीढ़ियों से उतरने लगती है। शुक्र अल्लाह का, जिंदा है वो। अली ने रोने वाला मुंह बनाकर वजदान के चेहरे को देखते हुए कहा, और कहकर वजदान को छोड़े मुंह बनाते हुए पैर पटकते हुए वो घर से बाहर निकल जाता है। वजदान उसे जाते देखकर हैरानगी से उसकी तरफ देखता है। वजदान, ये कोई बात होती है पूछने वाली? हीर वजदान के पीछे एक सीढ़ी ऊपर खड़ी हुई बोलती है, तो पूछना बनता है, बंदा है मेरा, हमेशा तो ये मेरे साथ रहता है, फिर उसको लड़की कैसे मिल गई? फैजान गर्दन झटक कर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, मिल गई तो अच्छा है ना, उसको भी तो खुश होने का हक है, जिंदगी जीने का हक है। हीर वजदान का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहती है। वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेता हुआ कहता है,
लेता है। क्या हुआ? हीर वजदान के चेहरे से हाथ हटाते हुए कहती है। वो मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों डिनर पर जाना कैंसिल कर देते हैं। वजदान हीर के करीब आकर नज़र झुकाकर उसके पेट पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए कहता है। किस खुशी में? हीर वजदान का झुका हुआ सर देखते हुए बोली। वो आज तुम अच्छी लग रही हो। वजदान पेट से उंगली फेरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो मज़ीद ऊपर जाता हीर उसका हाथ झटक चुकी थी। तो क्या मैं आज पहली बार अच्छी लग रही हूँ? हीर सीढ़ी से नीचे उतरकर वजदान के करीब आते हुए पूछती है। बीवी मेरे इतने करीब मत आओ, मेरी नीयत पहले ही तुम पर खराब हो रही है। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए कदम पीछे की तरफ बढ़ाते हुए बोला। पर अफसोस आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। हीर कमर पर हाथ बांधे वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ इस वक्त मेरी जान, बस अपने ससुरालियों की बात रख रहा हूँ। वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है। वजदान के बढ़ते हुए कदमों पर हीर पीछे की जानिब बढ़ने लगती है। अगर बात ज़बान की ना होती तो इस वक्त तुम यहाँ नहीं मेरी बाहों में मेरे बेड पर होती। वजदान मजीद करीब आते हुए हीर की सुरमई गहरी आंखों में देखते हुए कहता है। तुम्हें अपनी मोहब्बत के नशे में उसकी शिद्दत में तुम्हें सर से पैर तक भिगा रहा होता। वजदान की नज़दीकी उसकी बातें हीर की सांसों को, उसकी दिल की धड़कनों को उथल पुथल कर रही थी। और इतना जान लो मेरी जान, जितना तुम मुझे तड़पा रही हो ये तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। फरजान हीर को दीवार से लगाए अपना दाया हाथ वो दीवार पर रखकर हीर के चेहरे पर झुकते हुए कहता है। मेरी मोहब्बत की शिद्दतें बर्दाश्त कर पाओ, अभी इतनी बहादुर नहीं हुई हो तुम। वजदान हीर के लबों पर झुकते हुए कहता है। वजदान देर हो रही है, जाना चाहिए, मामा पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। हीर लड़खड़ाते हुए वजदान की कैद से निकल कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है। हीर सांस ले बहन, वरना मर जाएगी। हीर अपने दिल पर धीरे धीरे से मुक्का मारते हुए कहती है। घर से बाहर निकलते हुए हीर गहरी सांसें लेते हुए खुद से कहती है। क्या हुआ, सांस नहीं आ रही? पर अभी तो मैंने तुम्हारी सांसें रोकी ही नहीं। वजदान हाथ लटकाए हुए हीर के पीछे घर से बाहर निकलकर उसे गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर कहता है। वजदान बस अभी कुछ मत बोले प्लीज़। हीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहती है। वो क्यों मेरी जान? वजदान भी गाड़ी के पास आकर बैक सीट का दरवाज़ा खोलते हुए पूछता है। आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही? आप कितनी गंदी बातें कर रहे हैं मुझसे। हीर अंदर बैठने के बजाय ज़ोर से दरवाजे को बंद करते हुए कहती है। बीवी के साथ रोमांटिक बातें करना गंदी बातें नहीं होती मेरी जान, ये फ्यूचर की प्लानिंग होती है जिसकी शुरुआत अभी से करनी है हमें। फरजान फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है। कैसी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आप, बताना पसंद करेंगे? हीर फरजान को अंदर बैठते हुए देखकर पूछती है। हमारे खूबसूरत से फ्यूचर की प्लानिंग, जहां हम लोग और हमारे बच्चे होंगे। एक इंसान का फ्यूचर तो तभी बनता है ना जब इंसान मुकम्मल होता है, जब उसके पास बीवी हो और बच्चे हो। फरजान ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है। फरजान की बात सुनते हुए हीर भी गाड़ी में सवार हो जाती है। आपको यकीन है हमारा फ्यूचर खूबसूरत होगा? हीर सीट बेल्ट लगाते हुए पूछती है। हाँ, यकीन है मुझे, हमारा फ्यूचर बहुत खूबसूरत भी होगा और मुकम्मल भी होगा। फरजान हीर के चेहरे को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। पर ये कहानी मुख्तलिफ है, इसमें किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। हीर उससे अपनी कहानी की याद दहानी करवाती है। जानता हूँ मैं, ये कहानी आतिश इश्क की है और इस कहानी में आतिश की इंतहा होगी और इश्क की भी इंतहा है। इश्क का दूसरा बाब भी इश्क की जीत पर ही ख़त्म होगा। वजदान हीर के चेहरे को देखते हुए पूरी यकीन अंदाज में कहता है और कहकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है। फिलहाल डिनर करके अपने ससुराल वालों को खुद से मिलवाता हूँ, फिर आकर हमें अपने बच्चों को दुनिया में लाने की तैयारी भी शुरू करनी है। बेचारे दुनिया में आने के इंतज़ार में होंगे, तुम खामखा उन्हें लेट करवाए जा रही हो, बुरा लग जाएगा उन्हें। फैज़ान गाड़ी को घर से बाहर निकलकर कच्चे पक्के रोड पर चलाते हुए कहता है। फैज़ान फजूल बातें मत करे और चले चुप करके। हीर बेजारी वाले लहजे में कहती है। तुम्हें डर लग रहा है? फैज़ान पूछता है। किससे? हीर बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है। इसी से। फैज़ान शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहता है। उफ, हर वक्त आपके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। हीर गंदा सा मुंह बनाकर खिड़की खोलने लगती है। तुम कौन सा सारा दिन लोगों को लंगर तकसीम करने का सोच रही होती हो? तुम भी किसी को चीर फाड़ या फिर मेरे साथ रोमांस करने का ही सोच रही होती हो। वजदान गाड़ी सड़क की तरफ ले जाते हुए तंजिया लहजे में कहता है। आप क्या मेरे दिमाग में घुसे थे? तो आप जनाब को पता है कि मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं। अपने दिमाग की बातें मेरे अंदर फिट मत करे। हीर गर्दन झटकते हुए कहती है। आए बड़े, खुद की सोच ऐसी है और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। हीर मुंह में बड़बड़ाते हुए कहती है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ये वीडियो मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया है, तो आप लोग इसे एंजॉय करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस नावल को अपने कॉन्टेक्ट में शेयर ज़रूर करें। नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं।
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔